morning everyone. Myself is Dr. Sagir Ahmed. I am a consultant interventional cardiologist working at Sweetram Hospital Indore. Today we are here to celebrate World Heart Day and the theme is use your heart to connect. Why we are celebrating World Heart Day is just to create the awareness about the number one killer of cardiovascular diseases globally. We usually celebrate this year every year on 29th of September just to create an awareness regarding heart healthy lifestyle. All over the globe, the problem is very major, but particularly in developing countries like India, the disease is continuously increasing and a rising trend, particularly affecting the young populations. We are here to celebrate the World Heart Day, just keeping in mind the theme of the World Heart Day, that is use your heart to connect with other hearts. How we will use our heart to connect? We will connect it digitally via apps or via telemedicine. Right now we have three aspects of the theme, that is equality, prevention and community associated with cardiovascular diseases. Why equality? Every heart matters. There are so many people who are living alone. They are not connected with any cardiologist or any doctor or their family members, or they are living alone. And because of the pandemics, they have suffered a lot. So every heart matters. We will have to take care of each and every heart, either by telemedicines or digital platform or via apps. Then prevention, definitely prevention is one of the most important aspects of cardiovascular disease. We will have to control our diet, we will have to do a regular exercise, we will have to stop smoking, we have to control our diabetes, we have to control our cholesterol, we have to control our blood pressure, and whatsoever factors are there that can lead to cardiovascular diseases affecting your heart and brain, we will have to take care of it. Then community. Why community? Because my heart, your family member's heart, other members in the society, everybody is suffering from the deadly disease. During the pandemic, it has been told that those who are suffering from heart disease, diabetes, hypertension, old age, they should remain inside. And that has created a lot of problem. Most of the people, they lost contact with their doctors, they failed to reach the hospitals, and they are not able to get the medical services during emergencies, and that had created a lot of problem. So by this World Heart Day theme, we are going to connect to each and every heart via digital platform, and this is the theme of our today's World Heart Day. To procure a healthy lifestyle, maintain a well-controlled diabetes, hypertension, ideal weight, and diet and exercise. These are the main aspects of managing or preventing yourself from the deadly disease. In coming future, we are going to see one more pandemic. It may be related to your cardiovascular diseases. Thank you very much, and stay safe, stay healthy. नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक सेन, चौथराम हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज चौथराम परिवार वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट कर रहा है। इस उपलक्ष्य में समाज में हार्ट से संबंधित जो सामान्य कॉमन बीमारियां हैं उनके लिए और उनसे संबंधित जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। हार्ट की बीमारियों में सबसे कॉमन बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का अधिक होना, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जो आम भाषा में लोग बोलते हैं, और डायबिटीज़ है। ये तीनों बीमारियां हार्ट अटैक आने का बड़ा कारण बनती हैं। सबसे पहले में ब्लड प्रेशर
या जिसे हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं, उससे रिलेटेड भ्रांतियाँ जो सामान्यतः पेशेंटों में होती हैं उनको दूर करने के लिए कुछ की कोशिश करूँगा। हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन बीमारी है। बीमारी का इलाज ना कराए जाने पर यह हार्ट अटैक या पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है। साइन और सिम्टम्स, लक्षणों की जानकारी होने पर इस बीमारी की गंभीर स्थितियों को टाला जा सकता है। हाइपरटेंशन को समझने की दिशा में पहला कदम है कि हम इससे जुड़े सामान्य भ्रमों को दूर करें और सच को जानें। पहला सामान्य भ्रम यह है कि उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर हमेशा खराब आहार और शारीरिक गतिविधियों की कमी से होता है। ऐसा नहीं है। ज़्यादा नमक खाना, शारीरिक गतिविधि या व्यायाम की कमी निश्चित रूप से आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ा सकती है, लेकिन हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम या कारणों में कुछ कारण आपके नियंत्रण के बाहर होते हैं, जिसमें बढ़ती उम्र और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन का होना है। एक दूसरा बड़ा भ्रम जो कि सामान्यतः हर आम व्यक्ति के मन में होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो मुझे महसूस होगा। ऐसा नहीं है। हाइपरटेंशन एक शांत जानलेवा बीमारी है। यह साइलेंट किलर है, क्योंकि यह कभी भी किसी पर्टिकुलर सिम्टम्स को नहीं शो करता है। कुछ लोगों को लगता है कि दिल की धड़कनें सामान्य से अधिक होना, सिर दुखना, हाथ पैर दुखना, ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर के कारण किसी तरह का सिम्टम नहीं होता है। तीसरी बड़ी समस्या और भ्रांति जो हमारे सोसाइटी में ब्लड प्रेशर के लिए है वो है कि ब्लड प्रेशर एक खतरनाक बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है। हाइपरटेंशन हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक का एक मुख्य कारण है। हाइपरटेंशन तब होता है जब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बहुत तेजी से बहता है और उसका दबाव ब्लड वेसल्स पर बहुत अधिक होता है, जिससे ब्लड वेसल्स फटने के साथ साथ किडनी, दिल तथा शरीर के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन के मरीज में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर एक घातक बीमारी है, क्योंकि ये अधिकांश लोगों में बिना किसी संकेत या बिना किसी लक्षण के होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप नियमित जांच द्वारा अपने ब्लड प्रेशर पर नजर रख सकते हैं। इन आसान उपायों की मदद से आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को घटा सकते हैं तथा उसे सीमा के भीतर रखने में मदद भी मिलती है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए है कि हम स्वस्थ वजन अपनाएं। हमारा वेट नियंत्रित होना चाहिए। हमें अपने डॉक्टर से मिलके अपने वजन कम करने की ज़रूरत के बारे में समझना चाहिए। नमक कम खाएं। सामान्यतः रोज 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। स्वस्थ आहार लें। स्वस्थ आहार यानी ज़्यादा वसा, कोलेस्ट्रॉल वाले आहार को लेना कम करें और अपने खान पान का पूरा रिकॉर्ड रखें। आज के समय में आराम के लिए समय निकालें। जरूरत से ज़्यादा व्यस्त रहना भी तनाव का कारण बनता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। धूम्रपान छोड़ें, क्योंकि धूम्रपान अस्थायी रूप से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। रक्तचाप की दवाइयाँ समय से ध्यान से लें। अपने ब्लड प्रेशर पर नज़र रखने के लिए अपने डॉक्टर से मिलें और इसको सही स्तर पर बनाए रखें। डॉक्टरों की सलाह के बिना अपनी दवाइयों को लेना बंद ना करें। थैंक यू। इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल एक दूसरी से बड़ी समस्या है जो सामान्यतः हार्ट अटैक और पैरालिसिस का कारण बनती है। इसके लिए भी मैं कुछ जो आवश्यक चीज़ें हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने की, जो सामान्य उपाय हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा उच्च स्तर आपके दिल की बीमारी और स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से अपने कोलेस्ट्रॉल स्तर की
जांच कराना आवश्यक है। स्वस्थ और संतुलित आहार लेने और नियमित रूप से व्यायाम करने जैसी स्वस्थ आदतें आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक होती हैं। अपने दैनिक जीवन में कुछ सामान्य उपायों को अपनाकर हम खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कहते हैं, की मात्रा घटा सकते हैं तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल, जिसे एचडीएल कहते हैं, की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हम अपने आहार में क्या इंक्लूड करें जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करे। खराब कोलेस्ट्रॉल घटाने तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करके अपने हृदय को स्वस्थ रखने वाले आहारों में लो फैट फूड, तली हुई चीजें जैसे कुकीज, केक्स वगैरह ना लें, बादाम, अखरोट जैसी चीजें खाएं। यदि आप नॉनवेज लेते हैं तो मछली, जिसमें पांगड़ और रावस मछली शामिल है, का सेवन करें। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड कराती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। आहार में फाइबर की मात्रा अधिक लें। ओट्स, बीन्स, दालों तथा सब्जियों का सेवन बढ़ाएं और प्रोटीन से भरपूर डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। व्यायाम या माध्यमिक गतिविधि कोलेस्ट्रॉल स्तर घटा सकती है तथा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, की मात्रा बढ़ाती है। रोज सिर्फ 10 मिनट की शारीरिक गतिविधि भी कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण के लिए असरदार होती है। आपके द्वारा चुने जाने वाले महत्वपूर्ण व्यायामों में तेज चलना, साइकिल चलाना, तैराकी, एरोबिक्स जैसी व्यायामों को सम्मिलित करें। अतिरिक्त वजन को घटाएं, धूम्रपान छोड़ें, शराब पीना बंद करें। ज्यादा शराब पीने से दिल की गति रुकने तथा स्ट्रोक जैसी बीमारी होने की समस्या रहती है। कोलेस्ट्रॉल स्तर नियंत्रित ना होने पर अपने डॉक्टर से मिलें तथा उनके द्वारा समझाई गई दवाइयों का सेवन करें। तीसरी बड़ी समस्या डायबिटीज है। इसमें ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है और जिससे कई तरह के समस्याएं, हार्ट अटैक, पैरालिसिस होने की संभावना रहती है। सामान्यतः स्वस्थ आहार लेके एवं स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर हम अपने डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। स्वस्थ आहार लें, इसमें बड़ी मात्रा में सब्जियां, फल, साबुत अनाज का समावेश हो। आहार में ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व और फाइबर होने चाहिए। तली हुई चीजें जैसे वसा और कैलोरी से भरपूर चीजें ना खाएं, इससे ब्लड शुगर बढ़ता है। पैदल चलने, तैराकी जैसे व्यायाम नियमित रूप से करें। व्यायाम ब्लड शुगर स्तर को कम करता है। धूम्रपान ना करें, इससे डायबिटीज की गंभीर स्थितियां और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अपने कोलेस्ट्रॉल तथा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें, क्योंकि इनसे दिल की होने वाली बीमारियां बढ़ती हैं। शराब और इस तरह के अन्य पेय पदार्थ पीने से कोलेस्ट्रॉल स्तरों में नकारात्मक असर पड़ता है तथा शुगर भी अनियंत्रित होती है। अपने वजन को नियंत्रित करें। तनाव में ना रहें, क्योंकि इससे इंसुलिन की प्रणाली प्रभावित होती है। आराम करने की तरीके सीखें, मेडिटेशन करें। अपने पाँव में किसी तरह की लाली, सूजन, फोड़े इत्यादि की जांच तुरंत कराएं। इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टरों से राय जरूर लें। कार्बोहाइड्रेट लेना बंद ना करें। ब्लड ग्लूकोज स्तर कम हो जाने पर हमेशा फल जैसा कोई कार्बोहाइड्रेट से भरपूर नाश्ता लेना चाहिए। अपने डॉक्टर के सुझाव के अनुसार डायबिटीज की दवाइयां लें। ये ब्लड ग्लूकोज स्तर को बनाए रखने में मदद करती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। स्वास्थ्य परीक्षण को टालें नहीं। साल में कम से कम 1 या 2 बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह डायबिटीज से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या को पहचानने में सहायक होता है। और अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से मिलें। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, इसी भावना के साथ चौधराम परिवार आपके लिए वर्ल्ड हार्ट डे विश करता है। थैंक यू। वर्ल्ड
हार्ट डे हृदय संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता के हेतु मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर विभूति त्रिवेदी श्वेतराम हॉस्पिटल में डाइटिशियन के पद पे हूँ और आपसे खान-पान संबंधी इस बीमारी में खान-पान संबंधी अपने को क्या परिवर्तन करना चाहिए उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो हमें ज़रूरत है अपने वज़न का नियंत्रण। सभी व्यक्तियों को जो कि हार्ट से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं एवं इसके अलावा भी अन्य सभी व्यक्तियों को अपने वज़न पर ध्यान रखना चाहिए एवं उसे नियंत्रित करना चाहिए। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा वज़न अपने बराबर है कि नहीं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ, जिसमें अगर हम अपनी ऊंचाई को सेंटीमीटर्स में लेंगे और उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो एक अंदाज़न तौर पे आपको अपने वज़न का पता लगता है, उतना वज़न आपका होना चाहिए। इसके अलावा एक और तरीका है कि हम जानें कि हमको हार्ट संबंधी बीमारियों के लिए रिस्क है या नहीं। उसके लिए हमें अपने वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी कि अपने कमर के नाप को देखना चाहिए। इसमें पुरुषों की कमर का नाप 78 सेंटीमीटर एवं महिलाओं की कमर का नाप 72 सेंटीमीटर होना चाहिए। इन दोनों के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि हमको कोई रिस्क तो नहीं है, या जो व्यक्तियों उसमें आ रहे हैं, इस रिस्क में आ रहे हैं, उन्हें अपने वज़न को नियंत्रित करने हेतु प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, दूसरा पॉइंट इन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें अपने जो सीरियल से, क्योंकि भारत एक सीरियल बेस्ड फूड है ज़्यादातर यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनका, तो हमको हमारे आजकल की दिनचर्या में सीरियल्स जो हैं यानी कि अनाज, वो हम ज़्यादातर रिफाइंड अनाज का यूज़ हो रहा है। हमें पता भी नहीं लग रहा है कि हम अपने भोजन में कितने प्रकार से हमारे रिफाइंड अनाज हमारे बहुत शामिल हो चुके हैं। उसकी बजाय हमको मोटे अनाज एवं जो मिलेट्स हैं, जो अपने एरिया के आसपास उगने वाला जो अनाज है, उसको हमको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसमें हमको रागी और बाजरा, ज्वार या इनसे बने हुए दलिया या इनसे बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा इसमें मोटे अनाज और जो अपने आसपास जो उग रहे अनाज है उसके प्रयोग को बढ़ावा देने का हमारा यहाँ पे एम है, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। इस पॉइंट में मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि हमें जितने भी मैदा संबंधी जो चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड है, बिस्किट्स हैं या पास्ता है, इससे भी हमको अपने आप को थोड़ा सा बचाना रहेगा। इनका उपयोग अगर बहुत ज़्यादा है तो हमको एटलीस्ट वंस इन अ वीक इनकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, हमको उसको उसमें करना चाहिए। इस जो मल्टीपल मिनट्स को यूज़ करेंगे या जो हम अनाज को यूज़ करेंगे, इससे हमें कई फ़ायदे होंगे। इससे हमारी जो प्रतिदिन की दिनचर्या में जो विटामिन की ज़रूरत होती है, जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है और जो अति महत्वपूर्ण हार्ट डिजीज़ के लिए जो फाइबर्स होते हैं, उसका भी हमारे पूर्ति हमारी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट मैं जो बोलना चाहूँगी, वो चूँकि भारत में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं और जो नॉन वेजिटेरियन है वो व्यक्ति भी अपने आहार में प्रतिदिन तौर पे नॉनवेज नहीं लेते हैं, तो इसके लिए हमारा प्रोटीन की पूर्ति बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे शरीर के सारे तंत्र सुचारू रूप से चल सके। हमारी इम्यूनिटी जो कि कोविड पीरियड में हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमारी मैनेज रहे, उसके लिए हमको अपने प्रोटीन पे ध्यान देना है। और इस प्रोटीन की आवश्यकता हेतु हमको कंपलसरी तौर पर अपने को मिनिमम 2 कटोरी दाल या दाल से बनी चीज़ों का सेवन करना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक ही दाल का यूज़ करें, इसमें विभिन्न प्रकार की दालें जैसे कि मूंग, मोठ, चना, उड़द, राजमा, छोले, चबले, बड़ी या इनसे बनी हुई चीज़ें जैसे कि चीला या उसल या अंकुरित मूंग मोठ या अंकुरित मूंग मोठ से बना हुआ चीला, इसका प्रयोग हमको अपने प्रतिदिन के भोजन में करना चाहिए। इसके अलावा उसमें अपने को मिनिमम 1 मुट्ठी सूखे मेवे का प्रयोग करना चाहिए। इससे भी हमारी जो बहुत अति महत्वपूर्ण जो हमारे मिनरल्स होते हैं उसका प्रयोग उनका हमारे डाइट में समावेश हो जाता है। सूखे मेवे का तात्पर्य मेरा यहाँ पर कम से कम बादाम, थोड़े से इस मुट्ठी में बादाम, 10 से 12 बादाम, 1 से 2 अखरोट और जो बीजें होते हैं अपने
जो सूर्यमुखी के बीज या जो आपके कद्दू के बीज हैं, इनका प्रयोग अपने को करना है। और इनसे भी हमको अति जो फाइबर्स हैं और मिनरल्स हैं उसका समावेश अपना हो जाता है। तीसरी चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगी वो है फल और सब्जियाँ। फल और सब्जियाँ हमें कितना खाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी पसंद नापसंद बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है हमारे इनटेक के ऊपर। तो हमको विभिन्न प्रकार की सब्जियां खानी हैं। हर कैटेगरी एक अलग अलग इनकी कैटेगरी होती है, उसमें हर कैटेगरी जैसे कि बीन्स, जैसे कि हरी पत्ते वाली सब्जियां, जैसे कि गॉड फैमिली जिसमें हमारी लौकी, कद्दू और तोरई और ये सारी सब्जियां आती, तो हमको हर कैटेगरी की सब्ज़ी खानी है। हमको कोशिश करना है कि जो मौसम के अनुसार जो सब्जियां आ रही हैं वो कम से कम 3 से 3.5 कटोरी प्रतिदिन खाना है, जिसमें हमें विभिन्न रंगों का समावेश करते हुए भी अपने चयन करना है अपनी सब्जियों का। 1 से 2 फल, अगर डायबिटीज़ है व्यक्ति को तो हमको 1 फल मिनिमम, और अगर डायबिटीज़ नहीं है तो 1 से 2 फल जो मौसमी फल है उसको अपन अपनी डाइट में ले सकते हैं। फलों के प्रयोग से हमारे विटामिन्स की पूर्ति हमारे को हो जाती है, रेशे की पूर्ति हो जाती है, हमको डाइट में सटाइटी मिलती है, एक संतोष मिलता है जब हम फल खाते हैं, तो उसका हमारा काम हो जाता है अगर हम फल और सब्जियां लेते हैं। और यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है कि फल और सब्जियां को जो हम लेंगे तो इनका जूस बना करके लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें इनको कट फ्रूट्स या हमको सब्जियां जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से जूस के बजाय सब्जियों को वैसे ही पका करके खाना या सलाद के रूप में पका करके खा सकते हैं। या अगर ज़्यादा लग रहा है 4 से 5 अमाउंट, तो हम उनको जो डिफरेंट, जैसे हम उपमा बनाते हैं या पोहा बनाते हैं या चीला बनाते हैं या दलिया बनाते हैं, तो इसमें हम इक्वल अमाउंट ऑफ सब्जियां अपन डाल देंगे, तो उससे हमारा सब्जियों का जो कोटा है वो पूरा हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता है कि हमको इतना हमने खा लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर वो है हमारा, जब हम हार्ट के ऊपर बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, हमको चिकनाई और तेल कौन सा यूज़ करना है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब बातें हमारे दिमाग में घूमती है। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर हम अपने ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत होती है वो हमें अपनी कैलोरीज़ का नियंत्रण करना है। हम बहुत ही आसानी से कभी कहीं बाहर जाते हैं या हमको कुछ चीज़ बहुत ही अच्छी लगी या हम बाहर हैं, तो हम कई बार थोड़ा अपनी ज़रूरत के अनुसार से ज़्यादा खा लेते हैं। एक आध बार अगर ऐसा होता है तो वो ठीक है, परंतु अगर हम बार बार अपने पोर्शन साइज़ और अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर हम खाना खाएंगे, जहाँ पे हमारी कैलोरीज हमारी रिक्वायरमेंट से अधिक होएगी, वहाँ पर हमको ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में हमें मुश्किल आएगी। तो सबसे पहली बात, हमें अपनी कैलोरीज को नियंत्रित करना है। हमें एक्स्ट्रा ईटिंग है जो हमारे को पता नहीं चलता है, हम जॉब में हैं, कहीं पे हमने कुछ केक खाया, किसी का बर्थडे है या कोई हमारे समोसे कचौरी का बहुत ज़्यादा इंटेक है, उसको हमको नियंत्रण में करना पड़ेगा। इसके अलावा हमको जो तेल जो हमको यूज़ करना चाहिए, सबसे पहले तो हमको अत्यधिक तेल का यूज़ नहीं करना है। हम एक दिन में मिनिमम 4 से 5 जो छोटे चम्मच होते हैं उसी में अपने को पूरे दिन का भोजन बनाना चाहिए। और ये तेल रीहीटेड ना हो, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम घर में भी कोई तलने का काम करते हैं तो हमको उस तेल को बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, उस तेल को केवल उसी काम के लिए अलग से नहीं रखना चाहिए। इसीलिए जो बाहर के कचौरी, समोसे या तली गली चीज़ें होती हैं उसमें ट्रांस फैट होता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो हमको तेल को बार बार हीट करने से बचना चाहिए। अमाउंट हमारा 4 से 5 चम्मच तेल का है सामान्य तौर पे सभी लोगों के लिए। और कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए, तो हमको म्यूफा रिच तेल के प्रति जाना चाहिए। हालांकि बदल करके तेल यूज़ करने से भी हमको फ़ायदा होता है, और हमें म्यूफा रिच तेल जैसे आपका सनफ्लावर ऑयल है या आपका राइस ब्राइन ऑयल है, कैनोला ऑयल है, या आपका मूंगफली का तेल है, या आप इन सब तेलों को बदल करके यूज़ कर सकते हैं।
1 चम्मच घी खाने में हमें दिक्कत नहीं है, पर हमको उसको प्रोपोर्शनेटली इन्हीं 5 चम्मच में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 4 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी का प्रतिदिन में सेवन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ हेल्दी एंड माइंडफुल ईटिंग।